میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کل پوری رات بیٹے کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں خود بھی نہیں سو پائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کچن میں آئی تھی تاکہ اس کے لیے دودھ گرم کر سکوں، جب اچانک ہی میری وہاں پر نند چلی آئی۔ اس نے میرے ہاتھوں سے دودھ کا جگ لیا اور میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ تو میرے بیٹے کے حصے پہ نظر رکھے۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں خود پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا دودھ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور میری ساس کو بھی وہاں پر بلا لیا۔ اماں دیکھو تو، کیا میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں؟ کیا میں کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر سکتی؟ دیکھو بھابھی نے کیسے مجھے غیر کر دیا۔ ساس نے اسی وقت ہی مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور زور سے میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، تو بار بار اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے؟ تو ہر بار یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ تو ایک معمولی سے غریب گھرانے سے آئی ہے، اور تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیٹی کو کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے منع کرے؟ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے انہیں منع نہیں کیا، بلکہ یہ خود مجھے دودھ لینے نہیں دے رہی۔ ابھی میں نے یہی کہا تھا کہ میری ساس چیختے ہوئے کہنے لگی، اگر یہ تمہیں نہیں دے رہی تھی تو اس کی مرضی، تم کون ہوتی ہو اس کے ساتھ بحث کرنے والی؟ میں نے انہیں بتایا کہ سائم کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ رات سے ہی بخار میں تپ رہا ہے، اسے شدید کمزوری ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی کھا نہیں رہا، اس لیے اسے دودھ میں ہلدی ملا کر دینے والی تھی۔ ہماری طرف سے وہ مر جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جہاں تک میری ذات کا سوال تھا تو میں ہر طرح کا ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں میرا دل خون کے آنسو روتا تھا اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں اور انہیں دنیا بھر کی تمام آسائشات دوں، مگر میں خود بے بس تھی۔ میں خود فی الحال کسی اور کے در پر پڑی ہوئی تھی۔ اگر میرا شوہر اچھا ہوتا پھر بھی میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا، لیکن یہ سب کچھ اسی کی وجہ ہی سے ہو رہا تھا۔ وہ انسان جس نے ایک لمبے عرصے پہلے مجھے محبت کے جھوٹے خواب دکھائے تھے، جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری آئیڈیل زندگی کو حقیقت کا رنگ دے گا، اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھ سے ہی ہمیشہ بے حد پیار کرتا رہے گا، میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا، مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اب اسی نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے میں اس حد تک شرمندہ اور ذلیل ہو چکی تھی کہ اکثر تو مجھے اپنی ذات سے نظریں ملاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی تھی۔ میں کیا سے کیا بن گئی تھی۔ اب جب سوچتی تھی تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے وہیں زمین پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ گڑیا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ وہ میرے کندھے کو تھپک رہی تھی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، ماما جان آپ روئے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم پھر اچھے سے رہنے لگیں گے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا۔ یہی دو بچے تو میرے جینے کی وجہ تھی، ان کی وجہ سے ہی تو میری سانسیں چل رہی تھیں۔ اگر میرے پاس یہ موجود نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ اس سے لے کر میں کمرے میں واپس آ گئی اور بیٹے کے ماتھے پر پھر سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ میں اسے اسپتال لے کر جاتی۔ اپنی سب سے چھوٹی کنواری نند سے جب میں نے پیسے مانگے تو وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میرے پاس آپ کے ان فضول ڈراموں کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، میں نے ایک کانسرٹ پر جانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ بچہ جو اندر بیمار پڑا ہوا تھا وہ نہ صرف میرا بیٹا تھا بلکہ اس کا بھتیجا بھی تھا۔ وہ صرف میرا خون نہیں بلکہ اس کا بھی خون تھا، تو وہ کیسے اتنی بڑی بات کر سکتی تھی؟ میرے دل میں آیا کہ میں اس سے سوال کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ پتھر دلوں پر اس طرح کے سوال بھی اثر نہیں کرتے۔ جن کے دل اور آنکھوں پر مہر لگی ہو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی وہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ انہی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان کے کام کی ہوتی ہیں اور جن سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ چیزیں اور وہ لوگ جو ان کے کام کے نہ ہوں وہ ان پہ نظر کرم کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے اپنے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ میرا پورا سسرال ہی مطلبیوں سے بھرا ہوا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک مطلبی اور بے رحم انسان یہاں پر بستا تھا۔ شام تک اس کا بخار مزید تیز ہو گیا تھا، اس کی سانسیں بھی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے میرے بیٹے پر رحم کریں، خدا کے لیے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ میں اسے اسپتال لے کر چلی جاؤں، ورنہ وہ مر جائے گا۔ پہلے تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر زور سے لات مارتے ہوئے بولی، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ خبیث مر جائے تو ہی اچھا ہے،
मैं बेचैन हो गई। मैंने उन्हें कहा कि वो आपका पोता है, आप कैसे उसके बारे में ऐसा कह सकती हैं? मैंने कभी भी उसे अपना पोता नहीं माना, बल्कि मैं तो तुझे अपनी बहू मानने के लिए भी तैयार नहीं। वो तो अपने बेटे की वजह से मजबूर हो गई थी। अभी भी मेरा बस चले तो तुझे उस घर से बेदखल कर दूं। मैंने कहा, खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। मैं पीछे सारी कश्तियां जला कर आई हूँ। आपके बेटे को हासिल करने के लिए मैंने अपने माँ बाप तक को धोखा दे दिया। ये बात करते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। सास की लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और वह मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। वो जो अपने माँ बाप की सगी नहीं होती, वो कैसे ये ख्वाहिश कर लेती हैं कि आगे जाकर उन्हें सुकून मिलेगा। ये तुम्हारी माँ की बद्दुआएं और तुम्हारे बाप की आहें ही हैं जो तुम्हें इस कदर घटिया जिंदगी गुजार रही हो। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो बाहर। मेरी सास को सब कुछ पता था, मगर इसके बावजूद भी वो मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे। गुड़िया मेरे बेटे के सरहाने के करीब बैठी हुई थी और उसका सर अपने छोटे छोटे हाथों से दबा रही थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, मेरी मदद करें और मेरी मुश्किल आसान कर दें। किसी मसीहा को भेज दें। शायद कबूलियत का वक्त था। उसी वक्त ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर सोनिया खड़ी थी, जो मेरी बचपन की सहेली थी। कुछ अर्सा पहले ही वो इसी मोहल्ले में आई थी, लेकिन मेरा उसकी तरफ आना जाना ज्यादा नहीं था, क्योंकि घर के काम ही बहुत होते थे। मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी और जो थोड़ा सा वक्त बचता था वो अपने बच्चों के साथ गुजारती थी। दूसरी तरफ मुझे मेरा शौहर भी घर से निकलने की इजाजत नहीं देता था। वो मुझ पर हद से ज्यादा शक करता था और जरा जरा सी बात पर पीटना शुरू कर देता। मार से घबराकर मैं भी खौफजदा होकर उसके सारे हुक्म मानती थी और कोशिश करती थी कि उससे मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। मेरी दोस्त ने जब मेरी ये हालत देखी तो उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे माथे पर उंगली रखते हुए पूछने लगी, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? हाथ रखने की वजह से मुझे शदीद दर्द हो रहा था। एक सिसकी मेरे मुंह से निकली और कल रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरे शौहर ने मुझे जोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरा सर लकड़ी के मेज के साथ लगा था। नील पड़ गया था। मुझे अपने बेटे की बीमारी में ये भी भूल गया कि मेरे अपने चेहरे की हालत बिगड़ी हुई है। जिस्म पर भी जगह जगह दर्द हो रहा था। वो जालिम इंसान मुझे बेल्टों से पीटता था। इसके अलावा मारने के लिए उसने और भी बहुत सी चीजें रखी हुई थी। एक बार तो उसने मुझे डंडे से इतना मारा था कि मैं मौत के मुंह के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अगर ससुराल वाले उठाकर अस्पताल न लेकर जाते तो शायद मेरी मौत हो जाती। सोनिया मुझे कहने लगी, ये तुमने अपने बेटे का क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इस पर जरा भी रहम नहीं आता? तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जा रही? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं और ना ही यहाँ पर कोई मेरी बात सुनता है जो मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। मैं उसे खोने से बहुत डरती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे। मैं उसके साथ ही घर से बाहर निकल गई। मेरी सास वहां पर खड़ी मुझे देख रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। मोहल्ले वालों के सामने या फिर अपने रिश्तेदारों के सामने वो मुझे बुरा भला नहीं कहते थे, और ये शायद उसकी अच्छी भी आदत थी, या फिर वो दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचा कर रखना चाहते थे और दूसरों की नजरों में सुरखरू होना चाहते थे। जहां तक खुदा का सवाल था तो शायद ये खौफ उनके दिल से निकल चुका था और यही उनके बेहदायत होने की सबसे बड़ी निशानी थी। उसके शौहर के पास गाड़ी भी थी और हम दोनों को गाड़ी में बिठाने ही लगे थे कि उससे घर की तरफ से कॉल मसूल हो गई। बस एक इमरजेंसी के सिलसिले में जाना पड़ा था। मैं उसके शौहर के साथ अकेला जाते हुए बहुत हिचकिचा रही थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों से अच्छे तरीके से वाकिफ थी। इससे पहले कि मैं गाड़ी में बैठती, मेरी सास वावेला करते हुए वहां पर पहुंच गई और चीखते हुए कहने लगी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारी इजाजत के बगैर एक गैर मर्द के साथ एक गाड़ी में जाओ। मैंने एक नजर अपने बेटे पर डाली और अपनी सास को समझाते हुए कहा, अम्मी जान, इसकी हालत देखिए, ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप क्यों इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर देती? मैं अय्याशी करने नहीं जा रही, बल्कि इसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। अगर आप लोग मुझे ले जाएंगे तो मुझे कोई मसला नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें इसके साथ जाने की। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए फिर से अंदर लेकर चले गए। और फिर उस दिन मैंने अपने बेटे को भी खो दिया। काफी देर तक मैं उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही, क्योंकि उसका जिस्म किसी आग की तरह गर्म था। और जहां तक मेरी सास का सवाल था, उसने मेरे कमरे का बाहर से लॉक लगा दिया था,
تاکہ میں کمرے سے باہر نہ نکل سکوں۔ زندگی میں اتنی بے بسی پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنا بے بس میں اپنے آپ کو آج محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے رب سے فریادیں اور شکایات کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیٹے کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ میں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اسے سچ مان سکوں۔ میں نے اس کے کندھے کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، مگر دوسری طرف سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی روح اس فانی دنیا سے کوچ کر چکی ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا جسے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور انہیں بد دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، ظالم لوگو، تم نے میرے بچے کو مار دیا۔ مگر شاید وہ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آیا۔ شام ہو چکی تھی اور میں زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ میں ہی تو وجہ تھی اس کی۔ اگر میں اپنے والدین کی بات مان لیتی تو شاید آج مجھے اتنا بڑا صدمہ نہ اٹھانا پڑتا۔ شام کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور میرا شوہر تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ میری طرف بڑھا اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں جو غم کی وجہ سے پہلے ہی عادی ہو گئی تھی، نہ جانے کتنی بار بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے مارنے پر مجھے جان اپنے جسم سے نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑا اور چیختے ہوئے بولا کہ اسے اسپتال لے جانے کے لیے تو میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ کیا غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا ضروری تھا؟ تو میں نے کتنی بار کہا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ تمہیں میری ایک بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اب مجھ میں صفائی پیش کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی صفائی پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بچے تھے۔ وہ تیزی سے بیٹے کی طرف بڑھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔ تب میرے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یقیناً اس سے بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے بیٹے سے محبت رہی تھی۔ یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ مر گیا ہے، میں نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ میرا پیارا چاند جیسا بیٹا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے نہ صرف اس پر ظلم کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نیک ممتا کے دل کے ساتھ بھی کھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہاری ماں پر نازل ہوگا اور تمہاری ماں کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے گی۔ اسے نہ صرف اس دنیا میں تکلیفیں ملیں گی بلکہ آخرت میں بھی وہ رسوا ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ عذاب تو تم پر نازل ہوگا۔ تم ایک بے حس اور ظالم انسان ہو، تم نے ہی اپنے بیٹے کو جان سے مارا ہے۔ میں پاگل ہو گئی تھی اور ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ وہ مجھے قابو کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے میرا بچہ جان سے مارا تھا، میں کیسے سکون حاصل کر سکتی تھی؟ میرے بیٹے کو مرے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اسی حالت میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ میری کل کائنات تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو ان لوگوں نے مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی گڑیا بار بار میرے پاس آ کر بیٹھتی اور میرے آنسو صاف کرتی۔ اس دوران میری ساس کئی بار میرے پاس آ چکی تھی اور مجھے گھر کے کام کرنے کے بارے میں بھی کہہ چکی تھی، مگر میں نے اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد ان کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، مگر میں یہ بات بھول چکی تھی کہ ابھی بھی میری اوقات وہاں پر ایک دو کوڑی کی ہے۔ کوئی بھی مجھے عزت نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی موجود ہے۔ وہ تو صرف اور صرف مجھے تھوڑا سا وقت دے رہے تھے تاکہ میں صدمے کو قبول کر سکوں اور دوبارہ سے نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب شوہر اندر داخل ہوا اور غصے سے کہنے لگا، جاؤ میرے لیے کھانا بناؤ۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور گڑیا بھی بیمار ہے، یہ بار بار مجھے اپنے پاس رکنے کے لیے کہہ رہی ہے، میں اس کے پاس ہی بیٹھوں گی، آپ اپنی بہن کو بول دیں کہ وہ آپ کو کھانا دے دے گی۔ میں نے بہت ہی رسانیت سے اور دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا شوہر میری بات کو سمجھ جائے گا اور میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ حد سے زیادہ ظالم انسان ہے۔ وہ اپنی بیلٹ نکال کر میری طرف بڑھا اور مجھے پیٹتے ہوئے کہنے لگا، تم کچھ زیادہ ہی اب حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ میں نے بہت منمانیاں برداشت کر لیں، لیکن اب مزید نہیں۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو اور جا کر میرے لیے کھانا بناؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ابھی تک سدھرا نہیں تھا، ویسے کا ویسا ہی تھا، ظالم اور بے حس انسان۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بیٹے کی موت سے اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا۔
लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। उसका दिल अभी भी पत्थर जैसा ही था। जब वो मार कर थक गया तो सामने जाकर बैठ गया। मैं बेयकीन थी, उसके चेहरे को देख रही थी। ये वही इंसान था जिससे कुछ अरसे पहले मैंने बेतहाशा मोहब्बत की थी, और मुझे लगता था कि उससे ज्यादा बेहतर इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो मेरी इज्जत करता था, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करता था, मगर फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया कि वो बहुत बदल गया। वो सारी मोहब्बत और वो सारे ख्वाब जो उसने मुझे दिखा रखे थे वो चकनाचूर हो गए थे, और अब उनकी किरचियां मेरी आंखों को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर रही थी। इसके बाद थोड़ा सा मजीद वक्त गुजरा और मेरे बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद तो वो मुकम्मल तौर पर ही मुझसे दूर हो गया। ससुराल वाले उसकी गैर मौजूदगी में मेरे ऊपर जुल्म करते थे। मेरी सास मेरा नाम बहुत ही नफरत से पुकारती थी। उसने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही समझ लिया था। मैं अपने माजी के बारे में सोचने लगी, जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। दरअसल अरसलान कुछ अर्से पहले ही हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आया था। ये बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। मैं बचपन से ही शरारती और चुलबुली तबीयत की मालिक थी। हर किसी के साथ पंगा लेना मेरी फितरत थी। अम्मा मुझे समझाती भी रहती थी, मगर मैं बाज नहीं आती थी, और शायद इसी फितरत की वजह से ही मैंने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म किया था। उससे हमारे मोहल्ले में रहते हुए थोड़े से दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम्हें पता चला है कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत और गबरू जवान आया है। उसकी बात सुन के मैं तेजी से अपनी जगह से उठ बैठी। खूबसूरत चेहरे मुझे बचपन से ही अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। मैंने उससे बेचैनी से पूछा कि वो कौन है और कहाँ पर रहता है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके साथ भी शरारत करूं और दिल लगी करूं। वो हैरान हो गई और मुझे बोली कि तुम्हारे पड़ोस में ही तो रह रहा है, रोज मैं उसी छत पर देखती हूँ, तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती। लगता है कि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं। चलो आओ ना, उसके साथ भी मजाक करते हैं, उसे हम बेवकूफ बनाते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब की बार जब भी वो छत पर आता है तुम बस मुझे बता देना, मैं भी वहां पर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर उसके साथ मजाक करेंगे। मैं बहुत ज्यादा पुरजोश थी। इस तरह के काम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और मेरे कज़नों ने ही मुझे इस सब की आदत डाली थी, वरना किसी जमाने में मैं भी बहुत शरीफ हुआ करती थी, अपने काम से काम रखने वाली, लड़कों के चक्कर से मुकम्मल तौर पर अलग। लेकिन ये चक्कर ऐसा होता है कि जब एक बार कोई इसमें पड़ जाए तो फिर बाद में उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इंसान आपकी जिंदगी से निकलता है तो आपकी नज़र दूसरे को ढूंढने लगती है। कुछ अर्से पहले ही मेरा एक ताल्लुक टूटा था, जिसकी वजह से अब मैं दूसरे की तलाश में थी। मैं अपने घर वालों से भी मुकम्मल तौर पर दूर हो गई थी। अपनी माँ के पास भी नहीं बैठती थी और ना ही अपने बाप से कभी सामना होता था। अब तो मेरी अपनी ही दुनिया बन गई थी, जहाँ पर मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही थी। जो दिल चाहता था वो करती थी। उस शाम मैं छत पर गई तो अरसलान अपनी छत पर टहल रहा था। उसे देखकर मैं मबहूत सी रह गई। बिलाशुबा वो बहुत हसीन था। उससे ज्यादा हसीन शख्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो किसी को भी अपना दीवाना कर लेने की सलाहियत रखता था। मेरी दोस्त ठीक कह रही थी कि मैं उसे देखूंगी तो खुशी से पागल हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ था। उसने अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश को महसूस कर लिया था। वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा, मगर मैंने अपनी निगाहें न फेरी और उसकी आंखों में ही देखती रही। मुझे किसी ने यह भी बता रखा था कि मेरी आंखें बहुत नशीली हैं, जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। शुरू में तो वो बहुत ही ज्यादा हिचकिचाया था और बहुत ही कम ही छत पर आता था, लेकिन जब उसे ये महसूस हुआ कि मैं उसकी जात में दिलचस्पी लेने लगी हूँ और उसे मुझसे कोई खतरा नहीं, यानी मैं किसी को भी शिकायत नहीं लगाऊंगी, और अगर हम दोनों में बातचीत हो भी जाती है तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, तो वो भी अब मुझसे छोटी छोटी बातें करने लगा था। एक दिन हम दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे को अपने बारे में बताया। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो गए और फोन पर बातें होने लगी। अम्मा मेरे बदलते हुए हालात देख रही थी और शक में भी मुब्तला हो रही थी। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझे समझाते हुए कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम कभी भी हमारी इज्जत पर आंच नहीं आने दोगी, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम अपनी माँ की तरबियत को कभी भी नहीं भूलोगी। ये बात कभी मत भूलना कि औरत की इज्जत उस वक्त तक होती है जब वो अपने घर के अंदर मौजूद होती है और अपने माँ बाप के पास होती है। जब वो अपने घर की चार दीवारियों से बाहर निकल जाती है या अपने माँ बाप पर किसी और को फोकियत देने लगती है, तो वो उसी दिन ही अपने आप को बेइज्जत कर देती है। इस वक्त वो मुझे अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, और ना ही मैं समझना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त तो मेरे सर पर मोहब्बत का भूत चढ़कर नाच रहा था। आज से पहले तक मुझे ये एहसास कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही मैं किसी इंसान के इस हद तक करीब गई थी। वो इंसान शक्ल से जितना मासूम नजर आता था,
और शुरू में वो जितना अच्छा बनता था वो उतना अच्छा भी नहीं था। वो भी हर हरबे से वाकिफ था और तब मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसके पहले भी बहुत सी औरतों के साथ ताल्लुकात रह चुके हैं। खैर, मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई थी और मेरा मकसद अब उससे निकाह करना था। मैंने जब उसके खानदान के बारे में पूछा तो वो मुझे कहने लगा कि इसका खानदान यहाँ पर नहीं रहता, बल्कि वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। यहाँ पर वो नौकरी की तलाश में आया है। बहुत जल्द उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर वालों को भी यहाँ पर बुला लेगा। इसके बाद उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं बगैर सोचे समझे ही राजी हो गई और मेरे साथ ये जिंदगी में पहली बार हो रहा था, वरना इससे पहले तक तो मैं ताल्लुक सिर्फ दिल लगी की बुनियाद पर ही रखते थे। अगर कभी अलग हो भी जाते तो इतना ज्यादा सोचती नहीं थी और ना ही कोई सदमा लेती थी, मगर इस इंसान में न जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो मैं हद से ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी और अब मेरी ये ख्वाहिश बन गई थी कि मैं उससे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। जब मजीद थोड़े से दिन गुजरे तो उसने मुझे कहा, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए। मैंने अपनी माँ से जाकर इस बारे में बात की तो अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इन सारे मामलात से दूर रहना, कि तुम्हारे तय करने वाले मामलात नहीं बल्कि ये हम लोगों के काम है। तुम्हारी जिस जगह पर शादी करनी हुई हम कर देंगे। अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है और ना ही तुम इतनी समझदार हो कि तुम इस तरह के झमेलों में पड़ सको। मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूँ, तुम अभी कुछ भी नहीं संभाल सकती। और जहाँ तक तुमने इस लड़के के बारे में मुझे बताया है तो वो तो मुझे बहुत बड़ा लोफर लगता है। और सबसे अहम बात कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी दूर की जगह पर नहीं करूंगी। या तो खानदान में तुम्हारी शादी होगी या फिर मैं अपने किसी जाने वाले के साथ ये रिश्ता इस्तवार करूंगी। अम्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और मेरी शादी मेरी पसंद की जगह पर नहीं की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। इस दिन अम्मा का दिमाग बहुत खराब हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत पीटा भी, मगर मुझ पर तो जैसे किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेरे सर पर तो मोहब्बत चढ़कर नाच रही थी। अम्मा मुझे मार रही थी और मैं सिर्फ उसी इंसान का नाम पुकार कर कह रही थी कि मैं उसी के पास जाऊंगी। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि ये सारी बातें मेरे अब्बा जान ने सुन ली हैं, जो थोड़ी ही देर पहले मस्जिद से वापस आए थे। उनकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बेटी से वो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और जिस बेटी को अपना सब कुछ समझते हैं वो कभी इस तरह की हरकत कर सकती है। अब्बा छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बेटा हमारी लाज रख लो, बेटा हमारे साथ ये जुल्म मत करो। हमने तुम पर बहुत मेहनत की है और तुम्हें बहुत ही नाजों से पाला है। इस दिन के लिए नहीं कि तुम किसी गैर मर्द के लिए हम लोगों से लड़ना शुरू कर दो। देखो हम तुम्हारा भला सोचते हैं और कभी भी तुम्हारी बर्बादी के बारे में नहीं सोचेंगे। मुझे लगा था कि शायद अब्बा मुझे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो मेरे सामने फरियादें कर रहे थे, वो तो मेरे सामने हाथ बांध रहे थे कि मैं उनकी इज्जत रख लूं। मगर उस वक्त तो मुझ पर शैतान सवार हो गया था। उस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी नजर आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि अम्मा अब्बा तो खुद सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार ली और अब जब मेरी बारी आई है तो मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अरसलान भी मुझे इसी तरह की बातें कहकर तंग करता रहा कि तुम्हारे माँ बाप को तुमसे मोहब्बत ही नहीं। अगर उन्हें वाकई तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुम्हारी खुशी को देखते। तुम फिलहाल इन सारी बातों को सोचना बंद करो और मेरे साथ भाग चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी और इज्जत वाली जिंदगी दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। यही वजह है कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वरना मेरे पास बहुत से मौके भी थे। मैं चाहता तो तुम्हें इस्तेमाल कर सकता था, मगर मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की और यही सोचा था कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकती हूँ। जो भी है, मैं ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उसने मुझे कहा था कि तुम फिलहाल ये कदम उठाओ, बाद में आकर तुम्हारे वालिदैन से मैं खुद माफ़ी मांगूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलने का वादा तो करो। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, कभी भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। और फिर अपने सब करीबियों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने अजनबी का हाथ थामने का फैसला किया और वही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। जिस पर मैंने बेतहाशा एतमाद किया था उसने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे निकाह करके अपने घर तो ले आया, लेकिन जैसा उसने बता रखा था वैसा कुछ भी नहीं था। ना तो उसके पास बहुत बड़ा बंगला था और ना ही उसके पास ज़मीनें थी, बल्कि वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता था। खैर, मुझे सबकी भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो उससे मोहब्बत की थी और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उससे इज्जत और मोहब्बत लेना ही था।
मगर वो इस मामले में भी कोताही करने लगा। थोड़े ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि वो शराब और जुए की लत में पड़ा हुआ है। रोज रात को वो आता था और मुझे पीटता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, मगर मेरी चीखों का इस पे कोई असर नहीं होता था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैं अगर अपनी सास को शिकायत लगाती थी तो वो मुझे ताने नहीं देती थी। कहती थी, हमें कुछ भी ना कहो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारा शौहर तुम पर यकीन करेगा, जबकि वो ये बात जानता है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ कर आई हो, और जिन लोगों ने तुम पर अपनी जिंदगी लगा दी और जिन लोगों ने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया, तुमने उन्हीं को धोखा दे दिया। तो फिर कैसे तुम इसके साथ वफादार हो सकती हो? जब मेरे ससुराल वालों ने ये देखा कि शौहर तो अब मुझे किसी खातर में नहीं रखता, तो वो भी मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। सास मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती और रात के वक्त शौहर आकर मुझे मारता। मेरी जिंदगी तो एक अजाब से कम नहीं थी। हर वक्त ही मैं रोती रहती, पीटती रहती, सिर्फ अपने रब से मदद मांगती रहती। मगर मैंने अभी तो कुछ लोगों का दिल दुखाया हुआ था। कुछ अरसे के बाद मैं अपने इलाके वापस आ गई ताकि अपने माँ बाप से माफ़ी मांग सकूं। मुझे इसकी बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली थी, वरना शौहर मुझे वापस भेजने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। शायद उसे डर लग रहा था कि अगर वाकई मुझे मेरे घर वाले कबूल कर लेंगे तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि वहाँ पर जाकर मुझे ये पता चला कि मेरे माँ बाप तो एक लंबा अरसा पहले ही ये इलाका छोड़कर चले गए थे। बल्कि जिस दिन मैं घर से भाग कर गई थी उससे अगले दिन ही वो यहाँ से निकल गए थे। मुझे ये सुनकर बहुत तकलीफ पहुंची थी, मगर तब मेरे पास आंसू बहाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त मेरे पेट में मेरा बच्चा भी मौजूद था, जिसके लिए मैंने अब जिंदगी गुजारनी थी और जिसके लिए मैंने सांस लेनी थी। अब तो मैं मौत की भी दुआ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इतनी जालिम नहीं थी कि खुद अपने हाथों से अपने बच्चे की भी जान लेती। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। जिंदगी के 6 साल बड़ी ही मुश्किल से गुजारे थे। इन 6 सालों में मैंने अपने घर वालों को बहुत याद किया था, और इन 6 सालों में मुझे दुनिया ने ये बता दिया था कि वाकई माँ बाप से ज्यादा इंसान का कोई भी वफादार नहीं होता, और ना ही इंसान के साथ कोई भलाई कर सकता है। काश उस वक्त नादानी में मैं इतना बड़ा कदम न उठाती, अपनी माँ की बात मान लेती, थोड़ा सा इंतजार कर लेती, तो यकीनन आज मैं किसी अच्छे घर में होती और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती। मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने अपने लिए खुद ये जहन्नुम चुनी थी, और अब इसमें रहना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ठिकाना मौजूद नहीं था। एक बार मैंने हिम्मत करके घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस आ गए, क्योंकि वहां रास्ते में हद से ज्यादा जालिम लोग थे। तब मुझे ये भी पता चला कि एक अकेली औरत के लिए इस दुनिया में मौजूद मर्द भी भेड़ियों जैसे ही होते हैं, जो इसे नोच डालते हैं। मेरे लिए मेरी इज्जत भी जरूरी थी और बच्चों की हिफाजत भी करना मेरी मजबूरी थी। इसलिए मुझे अब इस घर में रहना पड़ रहा था, और अब वो जुल्म सितम भी उठा रही थी। मगर जब मेरे बेटे की वफात हुई तो मैं बहुत बुरी तरह से बिखर गई। अब तो हर वक्त ही मेरी जुबान पर अपने ससुराल वालों के लिए बद्दुआ रहती थी। मुझे डर था कि कहीं वो बर्बाद ना हो जाएं। उन्होंने मुझे बहुत तकलीफें पहुंचा रखी थी, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो मेरी छोटी बेटी गुड़िया को पहुंचती थी, जो हर वक्त ही रोती रहती थी और अपने भाई का नाम पुकारती रहती थी। वो मुझे कहती थी कि जिस तरह से उन्होंने भाई को मारा है, क्या वो उसी तरह से मुझे भी मार देंगे। मामा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मामा, मैं आपके बगैर बहुत डरती हूँ। मामा, मैं आपसे अलग नहीं होंगी। प्लीज उन्हें कहिएगा कि वो मुझे ना मारें। एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसके खेलने की उम्र थी और जिसे खिलौनों से गर्ज होनी चाहिए थी, वो इस वक्त अपनी जिंदगी और मौत की बातें कर रही थी। ये बात एक माँ को अंदर तक हिलाने के लिए काफी थी। मैं उसे तसल्लियां देती थी और कहती थी, फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो ससुराल वालों ने अब मेरी बेटी पर भी जुल्म करना शुरू कर दिए। वो छोटी सी मासूम बच्ची से मेरी गैर मौजूदगी में काम करवाते थे। उस दिन मेरा शौहर दोबारा से मुझे मारने के लिए आया। मेरी बेटी सजदे में गिर गई और दुआएं मांगने लगी। कहने लगी, या अल्लाह जी, मेरी अम्मी को बचा ले। और शायद कबूलियत का वक्त था। इससे पहले कि मेरा शौहर मुझे मारना शुरू करता, बाहर से पुलिस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और मेरे शौहर को पकड़ कर ले गई। बाद में पता चला कि मेरे शौहर ने बहुत सी लड़कियों के साथ जुल्म किया था और उन्हें धोखे से शादी करके उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया था। मेरे घर वाले भी मुझे एक लंबे अरसे से तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा शौहर एक फ्रॉडी इंसान है। मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी इस कदर बड़ी नादानी के बावजूद भी वो मुझे नहीं भूली थी, बल्कि हमेशा ही मुझे याद करती रहती थी। मैं अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी
और मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां वापस आ गई हों। एक सुकून था जो मेरी रूह में उतर गया था। मेरे जिस्म के जितने भी जख्म थे वो सारे भर गए थे। मेरी जख्मी रूह को चैन आ गया था। इतनी खुश मैं कभी जिंदगी में नहीं हुई थी जितनी अपनी माँ के सीने से लगकर हुई थी। बाप ने भी मेरे सर पर हाथ रख दिया। माँ बाप वाकई बहुत अजीम होते हैं और औलाद के मामले में तो इनसे ज्यादा रहमदिल कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुझसे नफरत नहीं की थी और ना ही वो मुझसे नाराज थे। ये चीज मुझे बहुत हैरान कर रही थी। मैंने तो उन्हें सब लोगों के सामने रुस्वा कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वो मुझे अपना रहे थे। मैं काफी देर तक उनके कदमों में बैठी रोती रही और उनसे अपने किए की माफी मांगती रही। मेरी माँ की आंखों से भी मुसलसल आंसू बह रहे थे और वो मुझे मुसलसल एक ही बात कह रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी तकलीफों से गुजरी है, लेकिन मेरे बच्चे अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी और ये तुम्हारी माँ का वादा है। मेरी बेटी भी अब वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। अपने लोगों में वापस आकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अपने बेटे की मुझे याद आती थी, मेरी आंखें भीग जाती थी। लेकिन जब मैं देखती थी कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल खुशगवार है तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती थी। कुछ ही अरसे के बाद मेरा वो कज़न भी दोबारा से मेरा रिश्ता लेकर आ गया, जो एक लंबे अरसा पहले मुझसे शादी करना चाहता था। वो भी मुझे नहीं भूला था। वाकई किसी ने ठीक कहा है, इंतज़ार करने वाले एक लंबे अरसे तक भी इंतज़ार कर लेते हैं। वो थकते नहीं हैं बल्कि साबित कदम रहते हैं। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। जब उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मैं खुद को उसके बराबर की नहीं समझ रही थी। मगर उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, मैं अपने जहन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं लाता, और जहाँ तक तुम्हारी बेटी का सवाल है तो मैं उसे अपनी बेटी ही समझूंगा और बिल्कुल वैसे ही उसकी परवरिश करूंगा। मैंने उस इंसान से निकाह कर लिया और उसके बाद वाकई मेरी जिंदगी संवर गई। मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया था, मेरा रब भी मुझे माफ़ कर चुका था।